सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप ऑफ स्टेम सेल्स पढ़ेंगे। Basically, there are many types of stem cells. These are the major types. इन टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, पर्टिकुलरली एडल्ट स्टेम सेल्स बहुत प्रकार के हैं। कैंसर स्टेम सेल एक ही तरह का है, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल एक तरह के हैं। लेकिन एक एडल्ट स्टेम सेल ऐसा है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से मिलता है। Those cells are called as Muse cells, recently discover हुआ है। These cells are pluripotent. Only cell in your body which is pluripotent is these cells, Muse cells. Okay. So one by one we will see. First we will see embryonic stem cells, then we will see adult stem cell, then cancer. तो adult stem cell थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स मैं क्विकली आपको करता जाऊंगा, इसलिए आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझा चुके हैं आपको। जैसे एम्ब्रायनिक स्टेम सेल के बारे में भी आपको बताएंगे। म्यूट कर लीजिए, क्या ओपन है माइक, जिसका भी ओपन है म्यूट कर लो। कैमरा इज ऑल्सो ओपन। ओके, देखिए एम्ब्रायनिक स्टेम से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप लोग वीडियो देख करके पॉइंट बना लोगे। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स आर द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट, ओके, formed prior to implantation in the uterus. Point number 1. Embryonic stem cells are the cells of the inner cell mass of a blastocyst formed prior to implantation in the uterus. Point number 2. In human embryonic development, the blastocyst stage is reached 4 to 5 days after fertilization. At this time, it consists of 50 to 150 cells. Third point, embryonic stem cells are pluripotent and give rise during development to all derivatives of the 3 germ layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. Point number 4. In other words, we can say that they can develop into each of the more than 200 cell types of the adult body. Embryonic stem cells can give rise to more than 200 cell types of the adult body under culture conditions, provided they are given sufficient and necessary stimulation for a specific cell type to get developed. Okay. Point number 5. They do not contribute to the extraembryonic membranes or to the placenta. ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। पॉइंट नंबर 6, आप लिखोगे इसके कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स है। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके 5 में। फिर लिखोगे आप कि nearly all research till date has made use of mouse embryonic stem cells. एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल में जितना भी रिसर्च हुआ है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल आई एम टॉकिंग अबाउट, हालांकि अब ये बैन हो गया है। ओके, इसके लास्ट क्लिनिकल ट्रायल जो फर्स्ट फेज में ही क्लिनिकल ट्रायल करने वाली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और उसने बंद कर दिया, तो अब बंद है। लेकिन जितना भी हुआ है
So all till to date has made the use of mouse embryonic stem cell. Point number 6, mouse embryonic stem cell and human embryonic stem cells as well. इन दोनों पर जो भी रिसर्च हुए हैं इन्हीं दोनों पर derived from the early inner cell mass of the embryo. कहां से निकाला जाएगा? ट्रोफोसिस्ट स्टेज से, एम्ब्रियो से these cells can be obtained. स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में? यस सर. यस सर. ओके, तो पॉइंट नंबर 6 थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा रिसर्च की बात करेंगे हम. These all the research has been done on in embryonic stem cell research has been done on these two types. Okay, and they are obtained from the inner cell mass. Both of these cell types have the essential stem cell characteristics, but they require a very different environment in order to maintain an undifferentiated state. बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कुछ ही दिनों में ये सारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होकर के, तब्दील होके खर्च हो गए. इन सब का पॉपुलेशन फिर 0 हो गया. 50 से 150 200 सेल्स जो थे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन द इनर सेल मास ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर, ये डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए. ओके, और तब्दील हो गए, डिफरेंशिएट कर गए अदर सेल टाइप्स, और वो उनका पोटेंसी घट गया. कुछ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, इनकी प्लूरिपोटेंसी गई. ओके, क्यों? क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है क्या है? यूटरस का एनवायरनमेंट है नॉर्मल कंडीशन में, and this is inside this embryo, and this micro environment cannot be replicated, cannot be duplicated exactly in the in laboratory. इसको पूरी तरह से मिमिक करना इस एनवायरनमेंट को लेबोरेटरी में इज नॉट पॉसिबल. Because of this, micro environment is not possible in laboratory. But अब कुछ सफलता मिल गई है, कुछ कंडीशंस देते हैं. These cells differentiate rapidly, and to maintain undifferentiated state of these cells, क्योंकि तुरंत अब एम्ब्रियो आगे बढ़ जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा. टू मेंटेन करना इनको अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में under the laboratory condition is a challenge. If you culture these cells, they will tend to differentiate immediately, rapidly. लेकिन रिसर्च कर रहे हैं इसको लंबे समय तक बरकरार रखना है इस सेल लाइन को, यानी इस एम्ब्रियोनिक सेल में डिवीजन हो तो इनके डॉटर सेल्स भी एम्ब्रियोनिक सेल्स ही टोटल रहे पॉपुलेशन, ऑल डॉटर सेल्स. लेकिन नहीं, ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं इनके डॉटर सेल्स. So to maintain it is a challenge, but we have got the success. So they require very different environment in order to maintain an undifferentiated state. ठीक. पॉइंट नंबर 7 इसी का सब पॉइंट है, लेकिन अलग कर लेते हैं कि माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. इसमें माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के कल्चर की बात करेंगे, कैसे कर रहे हैं, किया जा सकता है या किया गया है. अब तो माउस पर भी शायद नहीं हो रहा है रिसर्च, कोई फंड नहीं इसको मिल पाता है. सब प्रोजेक्ट को बैन है गवर्नमेंट ने. जैसे बैंक ने लॉकडाउन में मोरेटोरियम लगा दिया था, ओके, कि बैंक आप अपना EMI डिले कर सकते हैं.
कई सारे कंट्रीज ने इस पर मोरेटोरियम लगाया हुआ है। सो माउस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स are grown are to provide this microenvironment equivalent. Mouse and embryonic stem cells can be grown on a layer of gelatin as an extracellular matrix for support. And they require the presence of leukemia inhibitory factor also in that culture medium, that serum media. So in that condition, these mouse embryonic stem cells can be maintained. लेकिन एक और चीज इनको देना पड़ेगा, एक ड्रग का कॉकटेल होता है, इसका नाम है पॉपुलर, अब तो ये बैन है, 2I नाम है इसका। इस ड्रग कॉकटेल में कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स फॉर PSK पाथवे एंड MAPK पाथवे, दो पाथवे का इनहिबिटर है। GSK3B पाथवे होता है आपका ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 बीटा पाथवे, क्योंकि ये एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होता है। इसका इनहिबिटर किसका, GSK3B ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 बीटा, एक पाथवे ये, और दूसरा मैप के नाम सुने होंगे, मैप के ERK पाथवे। ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। इस पाथवे के द्वारा जो है सो एक मतलब इस पाथवे में बहुत सारा चेन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, एंड these proteins, chain of proteins present inside the cell, they communicate a signal from the receptor present on the surface of the cell to the DNA in the nucleus of the cell. As a result of which, the signal starts when a signaling molecule binds to the receptor on the cell surface and ends when the DNA in the nucleus expresses a protein. कहने का मतलब मैप के काइनेज पाथवे एक्टिव है तो सिग्नलिंग हो रहा है, एक कोई सिग्नल बाहर से आएगा जिसका DNA पर डायरेक्ट असर है किसी जीन को एक्सप्रेस कराने में, it will bind to the receptor, and in the cytoplasm there is a series of many proteins which are part of the MAPK ERK pathway, or ultimately this will lead into the expression of gene, certain genes. Okay, in the nucleus. Okay, and that will give rise to its product, protein product. And because of that protein product, some changes will occur in the cell. For example, cell division. मैप के ERK पाथवे अगर शट डाउन है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना बता दिए क्यों, क्योंकि इस कल्चर मीडियम में जिसमें माउस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल हम ग्रो करेंगे, उसमें हम एक तो ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर डाल रहे हैं सीरम मीडिया में, प्लस एक ड्रग का कॉकटेल जो कि ये 2I है, इसमें इनहिबिटर्स हैं इस पाथवे के और मैप के ERK पाथवे के, सेल डिवीजन को स्टॉप करेगा। तो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल सेल डिवीजन करेगा ही नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। ओके, तो इट विल मेंटेन इट्स अनडिफरेंशिएटेड स्टेट एंड इट्स प्लूरिपोटेंसी। ओके, लेकिन साथ में एक जिलेटिन सपोर्ट भी है, क्योंकि ये सेल कहां पर रहेंगे, किसी सतह पर रहेंगे। जिलेटिन सपोर्ट so that it provide the extra functions as the duplicate of extracellular matrix. Okay, so यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर इस सपोर्ट एक सेल का सपोर्ट है, लेयर है इसके ऊपर है, और ये पेट्री डिश में है, and in the petri dish media is there. In that media we have this drug 2I and leukemia inhibitory factor. आ रहा है स्टूडेंट समझ में?
यस सर। अगर इतना सारा कंडीशन दे देंगे तो माउस एम्ब्रायनिक सेल मेंटेन कर सकता है कल्चर में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, टाइम टू टाइम आपको कल्चर मीडिया को रिप्लेस करते रहना पड़ता है। वो तो हर कल्चर, जो भी कल्चर करेंगे, जो सेल कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते हैं कि यू हैव टू कीप ऑन रिप्लेसिंग द मीडिया आफ्टर फ्यू डेज, क्योंकि उस मीडिया में न्यूट्रिएंट डिप्लीट कर जाएंगे, वेस्ट एक्यूमुलेट कर जाएंगे, so that will not be healthy for the cell to survive. So it will, after typically after 1 week we keep on changing media. Point number 8, ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स को कैसे ग्रो करेंगे? ह्यूमन एम्ब्रायनिक, ये तो माउस को करा दिए। ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स को ग्रो करने के लिए एक फीडर लेयर, जैसे यहाँ पर जिलेटिन का यूज किए थे फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर एक फीडर लेयर दिया जाता है। और ये फीडर लेयर बेसिकली इज, इन दिस फीडर लेयर बेसिकली mouse embryonic fibroblast cells are there in this feeder layer. Cells हैं embryonic in origin but from mouse. Cell type fibroblast. Okay, बार बार फाइब्रोब्लास्ट का नाम आ रहा है। फाइब्रोब्लास्ट कैसा है? सेल को कहते हैं। Is a type of biological cell that synthesizes the extracellular matrix and collagen, produces the structural framework like stroma for animal tissues. These are those cells, and these cells play a critical role in wound healing. Fibroblast cells. Okay, fibroblast cells are the most common cell of the connective tissue in the animal. तो उसी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को यहाँ पर मेश में लगा दिया और फिर यूजिंग दिस फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ पर दूसरा कलर से कर दो, फीडर लेयर है फाइब्रोब्लास्ट का, माउस एम्ब्रायनिक सेल्स हैं, इस फीडर के ऊपर प्लेस कर दिया अब हम अपना ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। अब ये क्या करेगा? क्यों एम्ब्रायनिक फाइब्रोब्लास्ट यूज किए? क्योंकि इट हैज द टेंडेंसी टू रिलीज ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब बहुत ही बेसिक फाइब्रो, आज सुबह ही फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की चर्चा किए थे हम लोग, कई तरह के, 4-5 तरह के, 8, 4, 10, 7, 4 तरह के चर्चा किए थे। एक बहुत ही बेसिक टाइप का है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, दैट इज 2, FGF2। ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करेगा और इट विल सप्लाई दैट ग्रोथ फैक्टर टू एम्ब्रायनिक स्टेम सेल। ओके, तो इसकी वजह से इस ग्रोथ फैक्टर जो है इस एम्ब्रायनिक सेल को रखेगा फिर अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल। ओके स्टूडेंट्स, so without the optimal culture conditions that we are giving, as we have seen in this case and in this case, maintaining the undifferentiated state of embryonic stem cells is not possible because embryonic stem cells will rapidly differentiate. Okay, आगे चलिए स्टूडेंट। यस सर। कुछ और है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, हालांकि इतना भी जान लो तो ठीक है, आप एग्जाम के हिसाब से, बट
Still. 9th point. Human embryonic stem cell is also defined by, से सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन से मार्कर्स हैं जो इनकी पहचान है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की। सेल सरफेस मार्कर और एनी साइटोप्लाज्मिक मार्कर। क्या कोई ऐसा स्पेशल प्रोटीन है जो इसी में एक्सप्रेस होता है और दूसरे सेल्स में नहीं, तभी तो वो मार्कर कहलाएगा, सिग्नेचर। यस, लेकिन कुछ हैं ये बिलोंगिंग टू ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो इंटरनल मार्कर्स हैं, वो दूसरे सेल्स में भी हैं। उन सारे सेल्स में है जिनमें सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी की आवश्यकता है। ओके, उन सेल्स में भी है। तो these are not unique to this proprietary item for the embryonic stem cells, but they are there. These are special items. और सरफेस मार्कर जो है वो उनका सिग्नेचर है। तो एक सरफेस मार्कर बता दूंगा और फिर देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो आप अभी तक पढ़े हैं कि इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड सेल सरफेस प्रोटीन्स. It is also characterized by the expression of several transcription factors and cell surface proteins. Particularly, the name of the transcription factors which are important ones which are present in embryonic stem cells. These embryonic stem cells, the one is OCT4. पहले भी एक टॉपिक में पढ़े थे. Second one is NANOG. Third one and SOX2. These three transcriptional factors form the core regulatory network in the embryonic stem cell, and the combination of these three ensures the suppression of genes that lead to differentiation and the maintenance of pluripotency is achieved. Okay. So these transcriptional factors जब तक हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में तीनों एक साथ प्लूरिपोटेंसी रहेगी उसकी. ओके. और डिफरेंशिएशन जो है वो सप्रेस रहेगा. ये हो गए सेलुलर मार्कर. इनसाइड क्या इंपॉर्टेंट है, मार्कर नहीं कर सकते हैं दीज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स डायरेक्ट लिखो, लेकिन सेल सरफेस मार्कर, सेल सरफेस एंटीजेंस जो है यूनिक है, एंड उनका नाम है एक सरफेस एंटीजन that is most commonly used to identify human embryonic stem cells, जो इसका यूनिक है, सिग्नेचर है, इसी से पता लगेगा ये सेल की ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है. उसका नाम है एक ग्लाइकोलिपिड है, नाम है उसका स्टेज स्पेसिफिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन 3. ठीक है, और 4 भी. ये दो जो है सेल सरफेस एंटीजन है जो इन सेल्स की पहचान है, सेल्स के ऊपर है, एम्ब्रियोनिक सेल्स के ऊपर ये प्रोटीन है. इसको शॉर्ट में SSEL भी लिखते हैं. CR 3 and 4. Hello students. Yes, sir. अब देखिए, ये तो हो गई इसकी बात.
सेल सरफेस एंटीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पिक्यूलियर मार्कर है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट ही एंटीजन का काम करता है। बेसिकली आपका केराटिन सल्फेट सेल सरफेस एंटीजन्स है। और ये कई बार पॉली एसिटाइल अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। ओके, और कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ भी एसोसिएटेड है दिस केराटिन सल्फेट। और ये कार्टिलेज में, कॉर्निया में, ब्रेन के सेल्स में ये होते हैं। कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी की वजह जो है वो केराटिन सल्फेट भी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस केराटिन सल्फेट फॉर्म्स द प्रोटियोग्लाइकन लेयर ओवर द सेल। ओके, उसको बोलते हैं केराटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन, एंड इट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी केराटिन सल्फेट एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के ऊपर है। सर ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी है क्या? यस। और दिस केराटिन सल्फेट एंटीजन, नाम बहुत तरह तरह के हैं। इट इज एसोसिएटेड विद अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो, तो नाम उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रा 160 है एक, ट्रा 151, दो तरह के केराटिन सल्फेट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। और भी अब रिसर्च चल रहा है, कोई मॉलिक्यूलर डेफिनेशंस, ये दो मॉलिक्यूलर डेफिनेशंस दीज आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दीज टू केराटिन सल्फेट। ठीक है, 9th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट आइए, इसमें एक्सेस कितना है कानून के हिसाब से। जैसे हम ह्यूमन एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स इन द लैब, बट दिस इज प्रोहिबिटेड। ये पॉइंट में नहीं लिखोगे, इसे बता रहे। तो बिकॉज of their combined abilities of unlimited expansion and pluripotency, ये 10th point में लिखोगे, embryonic stem cells remain a theoretically potential source for regenerative medicine, but and tissue replacement also after injury or disease. However, there are currently no approved treatments using एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। कोई भी ट्रीटमेंट अप्रूव नहीं है, सर पर रोक लगी हुई है। ना ही इस दिशा में जो एक दो प्रयास हुए थे उसको अप्रूवल मिली, क्लिनिकल ट्रायल को बीच में ही एबेंडन करना पड़ा। काफी कंट्रोवर्सी हुई कि हाउ कैन यू सैक्रिफाइस एन एम्ब्रियो, ओके, ह्यूमन एम्ब्रियो, एथिकल इश्यूज क्रिएट हो गए। So the research on embryonic stem cell is banned. So there are currently no approved treatments using human embryonic stem cells, although it has the potential to give us advantage. But how will you get them? That's the question. किसी एक एम्ब्रियो को के एम्ब्रायोनिक सेल्स को यूज करने का मतलब है उस एम्ब्रियो को नष्ट करना, जो कि एक इंडिविजुअल है, वो एम्ब्रियो कानून के नजर में। ओके, पर्पसफुली किसी को ट्रीटमेंट और इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का यूज किसी दूसरे इंडिविजुअल पर किया जाएगा के लिए या रिसर्च के लिए। सो हाउ कैन दैट बी अलाउड?
कोई भी परमिशन नहीं देगा, तो इस दैट्स व्हाई ये लॉ भी नहीं किया, इस पर बैन है, एथिकल क्लियरेंस नहीं है इसको। तो क्या करेंगे फिर, क्योंकि पहले ह्यूमन ट्रायल जो किया गया था, अमेरिका में ही पहला ह्यूमन ट्रायल हुआ था एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल पर 2009 में। लेकिन 2009 में मतलब ट्रायल अप्रूव किया नहीं गया था, 2009 में अप्रूव हुआ वो ट्रायल, और 2009 के बाद काफी दिनों तक ये बंद रहा, मतलब ज्यादा दिन भी नहीं, 2010 में फिर ये शुरू हुआ। ठीक, इस अप्रूव हुआ 2009 में, लेकिन ट्रायल इनिशिएट हुआ, कि ट्रायल किसको कहते हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रायल करना। तो 2010 में फिर ये इनिशिएट हुआ, वहीं पर एक ग्रुप था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिसर्च ग्रुप उसमें। लेकिन 2011 आते आते फिर कंट्रोवर्सी जब हुआ बहुत सारा, तो कंपनी जो थी जो इस ट्रायल को कंडक्ट कर रही थी, गेरोन कॉर्पोरेशन, दे अनाउंस दैट इट विल discontinue further development of its stem cell programs. So it was discontinued. Okay. So this is about embryonic stem cell. Once again, embryonic stem cells are pluripotent. They require specific signals for correct differentiation. Okay. But if you inject, suppose if one plays with it, if you inject the embryonic stem cell into another body, एक चूहा का एम्ब्रायनिक स्टेम सेल लेके किसी दूसरा चूहा में इंजेक्ट करा दो, क्या होगा? क्योंकि वहां पर उसको एनवायरनमेंट मिल गया, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल जो है वो, क्योंकि टेंडेंसी है क्विकली प्लूरिपोटेंसी लूज करने के लिए, इट विल क्विकली डिफरेंशिएट इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स इंजेक्ट करने के बाद। और उस सेल्स के बाद 200 वैरायटी का ऑप्शन मौजूद है, हेयर भी बन सकता है, हेयर फॉलिकल भी बन सकता है, हार्ट भी बन सकता है, लंग भी बनेगा, बोन भी बनेगा, कार्टिलेज भी बनेगा, इस तरह से कई तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाएंगे। बट दो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे। तो एक एम्ब्रायनिक सेल भी इंजेक्ट करा दिए तो एक बॉडी के अंदर फिर टेरेटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। टेरेटोमा कहते हैं कि ये ट्यूमर जैसा होता है, बेसिकली इट इज ए ट्यूमर, बट दैट ट्यूमर टेरेटोमा ट्यूमर है, लेकिन ये बना हुआ है बहुत ही सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से, जैसे हेयर, मसल, टीथ, बोन, और इन सब का एक मिश्रण है, हेयर का, मसल का, टीथ का, बोन का, एक दूसरे में गुथा हुआ ट्यूमर्स, ये टेरेटोमा है। तो टेरेटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स को ब्लड में इंजेक्ट करा दिया तो इसीलिए बहुत सारे टेरेटोमा से ही तो प्लूरिपोटेंसी का टेस्ट भी करते हैं ना? यस, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एथिकल कंसिडरेशन भी देखा गया, तो सब में ये फेल हो गया एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, और इसका यूज जो है बैन कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स एम्ब्रायनिक स्टेम सेल?